السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی شدہ بیٹیوں کا نصیب اگر خراب ہو تو وہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیا کریں، ان کے نصیب کا ستارہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ سسرال میں ان کی تمام مشکلات دور ہوں گی، سسرال والوں کی آنکھوں کا تارہ بن جائیں گی اور ہر کوئی بات مانے گا اور خود بھی ماننے کی کوشش کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز سکون اور نصیب کی بھلائی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا ضرور ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس کا نصیب خراب ہے یا قسمت ساتھ نہیں دے رہی، خاص طور پر جب ایک بیٹی شادی کے بعد اپنی نئی زندگی میں قدم رکھتی ہے اور اسے وہ سکون، عزت، محبت اور خوشیاں نہیں ملتی جن کی اس نے امید کی ہوتی ہے، تو وہ اور اس کے والدین دونوں ہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے تو ان کے دل بھی تڑپ اٹھتے ہیں۔ ایسی وقت میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مجید میں سکون، شفا اور نصیب کی بہتری کا راستہ موجود ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر دکھ کا علاج اور ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِی ہِیَ اقوم۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، یعنی یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے، علی گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا تمہارا خامند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مسجد میں گئے۔ حضرت علی مسجد میں واقعی سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہی ہیں، قم یا ابا تراب، قم یا ابی تراب، تو مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سر، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آئی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی، خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک پہنچی، بات تو پریشان ہوئی، فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا۔ 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پچھلی باتیں یاد آ گئیں، خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا عمر ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کریں، ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ بیٹی
अब्बा जी का हाल पूछने आई हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा, बैठाया अपने पास जैसे बाप बेटियों को बैठाते हैं। बैठे बैठे हजरत आयशा कहती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा के कान में कोई बात कही तो फातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब आकर उसके कान में बात कही तो वो खुश हो गई। जब वहाँ से फारूक हुई तो मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी, अब्बा जी ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वो क्या होती है, राज होती है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद काफ़ी दिन गुजर गए तो हज़रत आयशा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान में ये कहा था कि फातिमा, मैं शायद एक आध दिन इसी बीमारी में जा रहा हूँ। बेटी को बाप की वफात की इतला मिली तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो कान में कहा कि बेटी, मेरी बात सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। तो खुश हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी तो बेटी रोने लग गई, और बेटी को उसकी वफात की खबर दी है तो वो खुश हो गई है। ये बाप बेटी का मामला था। ये हदीस उस बाप बेटी के तअल्लुक़ को भी बयान करती है, बेटी की अपने शोहर के साथ तअल्लुक़ को भी बयान करती है, शोहर की अपनी बीवी के साथ तअल्लुक़ को भी बयान करती है, और सौतेली माँ और बेटी का बाहम तअल्लुक़ भी बयान करती है। जब एक बेटी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हो तो उसे और उसके वालिदैन को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रजू करें और कुरान को मजबूती से थाम लें। कुरान में बहुत सी ऐसी सूरतें और आयात हैं जिनकी तिलावत से दिल को सुकून मिलता है, नसीब में बरकत आती है और तकदीर के अंधेरे दूर हो जाते हैं। सबसे पहले सूरत अल फातिहा का जिक्र ज़रूरी है, जो कि कुरान का आगाज़ है और उसे उम्मुल कुरान कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल फातिहा हर बीमारी की शिफा है। अगर बेटी रोज़ाना उस सूरत को अखलास और यकीन के साथ पढ़ती है और दुआ करती है कि अल्लाह उसकी तकदीर बेहतर कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनता है। इसी तरह सूरत यासीन जो कल्बुल कुरान है, उसकी तलावत दिल को राहत देती है। रवायत में है कि जो शख्स सूरत यासीन पढ़ता है उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। अगर बेटी अपने नसीब की भलाई चाहती है तो रोज़ाना सुबह शाम सूरत यासीन की तलावत को मामूल बना ले। सूरत अल रहमान भी ऐसी ही एक सूरत है जिसमें अल्लाह ताला के बेशुमार नेमतों का जिक्र है और बार बार सवाल किया गया है, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जठलाओगे। इस सूरत की तिलावत दिल को अल्लाह की रहमतों की तरफ मतवज्जो करती है और इंसान को ये एहसास दिलाती है कि मुश्किलात के बावजूद अल्लाह की बेशुमार नेमतें उसके साथ हैं। सूरत अल वाक़िया के बारे में रवायात में आया है कि ये रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी का ज़रिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरत अल वाक़िया पढ़ता है उसे कभी फाका नहीं होगा। अगर एक बेटी या उसका घराना गुर्बत या तंग दस्ती में मुब्तला है तो इस सूरत की तिलावत से अल्लाह ताला रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाता है। इसी तरह सूरत बकरा की तिलावत भी घर से शैतान को दूर करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरत बकरा की तिलावत हुई है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। मुस्लिम शरीफ। अगर बेटी के घर में बेसुकूनी, झगड़े या नफरतें हों तो सूरत बकरा पढ़ने से ये सब ख़त्म हो जाते हैं और घर में रहमत नाज़िल होती है। आयतुल कुर्सी भी बहुत बड़ी नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान बस मौत का फासला रह जाता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह की हिफाजत नसीब होती है।
नसीब बेहतर होता है और दिल को सुकून मिलता है। इसी तरह मऊज़ात यानी सूरत अखलास, सूरत फलक और सूरत नास भी हिफाजत और बरकत का ज़रिया हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात इन सूरतों को पढ़ा करो, ये तुम्हें हर बुराई से बचाएंगी। अगर बेटी को नजर बद, दुश्मनी या जादू वगैरह का खदशा हो तो इन सूरतों की कसरत से तलावत बहुत मुफीद है। कुरान की आयत के साथ साथ दुआओं का जिक्र भी ज़रूरी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब सख्त बीमारी और आजमाइश देखी तो अल्लाह से दुआ की, अन्नी मस्सानी अल ज़ुर्रु व अंता अरहमर राहिमीन। सूरत अल अंबिया आयत नंबर 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें शिफा दी। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में कैद होकर दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरत अंबिया आयत नंबर 87, तो अल्लाह ने उनको निजात दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ हर मुसीबत से निजात की दुआ है। अगर बेटी अपनी किस्मत को खराब समझती है तो उसे चाहिए इस दुआ को कसरत से पढ़े, अल्लाह ताला उसके नसीब को बेहतर बना देगा। वालिदैन की दुआ भी औलाद के नसीब के लिए बहुत बड़ी कुव्वत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की दुआ ज़रूर कबूल होती है। जब वालिदैन अपनी बेटी के लिए दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए बेटे के नसीब की भलाई के लिए कुरान की तिलावत के साथ साथ वालिदैन की दुआ भी ज़रूरी है। इसके अलावा सूरत हा और सूरत मरियम भी बहुत मुअस्सर हैं। सूरत मरियम में अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का जिक्र किया है कि किस तरह अल्लाह ने उन्हें मुश्किल वक्त में सहारा दिया। जब वो दर्रे ज़दा में थीं और अकेली थीं तो अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह अपने बंदे को कभी तनहा नहीं छोड़ता। अगर बेटी भी मुश्किलात में अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। इसी तरह सूरत अलम नशरा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, आयात नंबर 65, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयात इस बात की उम्मीद दिलाती हैं कि कोई भी मुसीबत हमेशा के लिए नहीं रहती। बेटी को चाहिए कि इन आयात को दिल में बैठाए और यकीन रखे कि उसकी मुश्किलात ख़त्म होंगी और अल्लाह ताला आसानियाँ अता करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर दुआ और नेक अमल से बदल सकती है। अगर बेटी नमाज की पाबंद हो, कुरान पढ़ती हो, वालिदैन और शोहर के साथ हुस्न सलूक रखती हो और अल्लाह पर भरोसा करती हो तो अल्लाह उसके नसीब को बेहतर बना देता है। कुरान में है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक आयत नंबर 32, यानी जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। अलगरज बेटी के नसीब को बेहतर बनाने के लिए कुरान सबसे बड़ी रोशनी है। रोज़ाना सूरत अल फातिहा, सूरत यासीन, सूरत अल रहमान, सूरत अल वाक़िया, सूरत बकरा, सूरत अखलास, सूरत फलक, सूरत नास और आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत डालें। दुआए यूनुस और दुआए अय्यूब को कसरत से पढ़ें। वालिदैन अपनी बेटी के लिए दुआ करें और बेटी खुद भी अल्लाह से रुजू करे। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए उसकी तकदीर को संवार देगा, उसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ अता फरमाएगा और नसीब को बेहतर बना देगा। अगर हर नमाज के बाद सूरत यासीन की ही तिलावत कर ली जाए तो वो आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा मंद साबित होगी। लेकिन कोशिश करें बाकी सूरतों को भी पढ़ें, सूरत यासीन का विरद ज़्यादा करें। ये अमल इंतहाई पुरतासीर और हैरत कुन हद तक कामयाब अमल है। इस अमल से ना सिर्फ ससुराल में तमाम मुश्किलात दूर होंगी बल्कि ऐसी माएँ जो ये अमल करती हैं तो उनकी औलादें भी कामयाब और कामरान होंगी। हर तरफ से उन्हें खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। इंशाअल्लाह
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شادی شدہ بہنوں اور بیٹیوں کے